کے حوالے سے کہ اب تک وہ لوگ جو کہ سیلاب سے متاثر ہوئے، جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے گھروں کو اپنے سامنے سیلابی پانی میں بہتے ہوئے دیکھا، اپنے مال مویشیوں کو بہتے ہوئے دیکھا، وہ لوگ اب بھی کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور اب وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے ایگزسٹنس کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کی ایمرجنسی ہے وہ بھی ایک طرح سے نافذ ہوگی بھی، کیونکہ کوئی ان کے پاس سیفٹی میجر ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے پرائمری ڈیوسٹیشن، یعنی کہ جب سیلاب آیا سب کچھ بہا لے گیا، جو اس وقت جن کی زندگی نہیں تھی وہ اس دنیا سے چلے گئے، جو بھی سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد سیکنڈری جو تباہی ہے، ڈسٹرکشن اس کی، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بیماریاں پھوٹتی ہیں، سر پہ چھت نہیں ہے، پانی وہاں پر کھڑا ہوا ہے جس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں سے طرح طرح کے جانور نکل کے آپ کو ایک تو کاٹ بھی رہے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ ان کی بہتات اپنی جگہ، پھر بیماریاں جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا، مچھر اس پہ پرورش پا رہے ہیں، پانی صاف ہے تو ڈینگی، گندا ہے تو ملیریا۔ ساتھی آپ یہ دیکھیں، ہم وہی پانی ابال کے پینے پہ مجبور ہیں۔ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو سیلاب نے ہٹ نہیں کیا نا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں ایک دم سے۔ یہ جو ویدر بھی چینج ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ صورتحال کیا ہوگی۔ ایک تو وہاں پہ بھوک ہے، مفلسی ہے، افلاس، اور دوسری جانب یہ جو بیماریاں ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ اس سے ڈیل کیسے کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پلمونری ڈپارٹمنٹ ڈاؤ ہسپتال کے ہیڈ ڈاکٹر فیصل، اور کیونکہ ڈاکٹر فیصل خود بھی ابھی سیلاب متاثر علاقوں کا جب سے سیلاب نے ہٹ کیا ہے تو یہ ان علاقوں کا دورہ کرتے رہے ہیں، پرسنلی وہاں جاتے رہتے ہیں، ان علاقوں میں جاتے رہے جہاں پر انتظامیہ نہیں پہنچ سکی، کوئی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کچھ دیکھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنے عرصے سے جب سے سیلاب آیا ہے آپ خود پرسنل کیپیسٹی میں جا کے آپ سیلاب متاثر علاقوں کا آپ دورہ کرتے رہے، سب سے زیادہ آپ نے وہاں پہ چلے بھوک مفلسی دیکھ رہے ہیں وہ علیحدہ سے، لیکن بیماریوں میں آپ نے کیا کیا چیز وہاں پہ دیکھی؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتا دیا کہ یہ تو وقت ہے وہاں پر کہ سب بیماریاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ واٹر بورن ڈیزیزز جس کا آپ نے ذکر کیا، ڈینگی، ملیریا، وہ اتنا صرف انسانوں کے لیے بھی مسئلہ بہت بڑا ہے اور جانور بھی اس سے بے تحاشا متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں اندر جا کر، گاہے بگاہے جا رہا ہوں میں خود بھی ٹیمز کے ساتھ، تو اتنی ڈیڈ باڈیز ہیں جانوروں کی اور اس سے شدید تعفن اٹھ رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر انسانوں کے لیے اپروچ کرنا ان کی بھلائی کے لیے سب مشکل ہے، جانوروں کے آپ تو اندازہ کر سکتے ہیں کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے بالکل، تو وہ روڈ سائڈ بیسیکلی ہیں زیادہ تر جانور، ہر 100-200 میٹر کے بعد آپ کو ایک ڈیڈ باڈی جانوروں کی ملتی ہے، وہ بدبو الگ ہے اس کی، اور اس سے جو بیماریاں آپ آئیں گی وہ علیحدہ ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا وہاں جو بیماری اس وقت موجود ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ جلد کی بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر جو پیٹ کی بیماریاں ہیں، گیسٹرو جسے آپ بولتے ہیں، ظاہر گندگی ہے، کھانا صحیح نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، وہ ویسے بھی مال نیوٹریشن تھے اور اب حالت دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر وہاں پر یہ ڈینگی اور ملیریا یہ بہت اس پر ریمپنٹ ہوا ہے، اس کی بچاؤ کی ضرورت ہے بے تحاشا، اور پہلے بچاؤ پھر علاج کرنا آپ سمجھ لیں کہ اتنا مشکل ہے کہ ایکسیس کوئی نہیں ہے کہ جو پانی میں گرے ہیں ان کے لیے بھی۔ آپ کون کون سے علاقوں میں سر گئے؟ اچھا، میں اب تک جو میں خود وزٹ کر چکا ہوں، ٹیمز بھی اندر ہیں، نواب شاہ، قاضی احمد، وہاں کے نواحی سارے علاقے، دادو سے آگے ککڑ، یہ سب آلموسٹ سبمرجڈ ہیں۔ اس کے آگے جوہی برانچ ہے، جوہی برانچ وہ جگہ ہے جہاں پر آلموسٹ ایک 4 رو جو ہماری سڑک ہے وہ بالکل پانی میں سبمرجڈ ہے اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ تو آپ بھی میں خود بھی میں وہاں پہنچ چکا ہوں، اور ہماری ٹیم تو ہم وہاں سے ہے کہ آگے خیرپور، ناتھن شاہ اور مہڑ کے علاقے، یہاں پر جب ہم پہنچے تھے پچھلے ہفتے تو 12 فیٹ کے قریب پانی تھا یہاں پر۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جو گاؤں دیہات کا بھی آباد ہے، بالکل ایسا ہی ہے، باقاعدہ کشتیاں وہاں چل رہی ہیں، کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے اندر تک رسائی کا اس وقت ان کی دادرسی کے لیے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا سب لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لوگوں نے دل کھول کر امداد کی ہے، اس کو جتنا آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہو اتنا فائدہ ہے، تو 2 پرونگ میں ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ اس وقت ان کی پہلی صورت میں ان کو شیلٹر فراہم کیا جا سکے، ان کو سیف جگہ جس طرح بھی ان کو اس مچھروں کی بہتات سے بچانے کے لیے نیٹس فراہم کیے جا سکیں، ان کو خوراک وہ پہنچائی جائے جو فوری طور پہ استعمال کر سکیں، اور پانی صاف پہنچایا جائے، بیکاز ناٹ ایوری ون کین افورڈ کہ وہاں جا کے آپ اپنا سامان لے کے جائیں، وہاں پہ کوکنگ کریں، اور آپ جو ان کو آٹا دے کے آ رہے ہیں وہ کہاں پکائیں گے، ان کے پاس کہاں گیس ہے، کہاں وہ بندوبست کریں گے۔ سو پیکڈ فوڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہنچایا جائے، آپ کی ہماری گفتگو سے بہت سے لوگ جو ابھی بھی امداد دے رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ دیکھیں جی، ہم وہاں پر دے سکتے ہیں، ابھی آپ تھوڑا سا ان کو آٹا دے دیں، جو لوگ خشکی پا گئے ہیں وہ آٹا استعمال کر لیں گے، چاول آپ ضرور دیں دال کے ساتھ،
आसान भी है बनाना और पूरी फैमिली को कैटर और करता दूसरा है। उसके अंदर ये है कि अगर फर्ज करें आप बिरयानी बना के दे रहे हैं तो वो तो थोड़े ही टाइम में खराब हो जाएगी। वो आप सिर्फ रोड साइड पे जो है उनको दे सकते हैं। वो जो अंदर जो लोग मौजूद हैं, जहाँ पर पहले पानी के जरिए आपको अंदर जाना है, फिर उनके पास कुछ पॉकेट। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताएं कि आप चूँकि पल्मोनरी डिजीज़ को देखते हैं और मतलब डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं, ये एक इतने बड़े एरिया पे आपने कहा कि 12-12 फीट पानी जहाँ पर खड़ा है, तो पानी खड़ा है, उसकी निकासी का भी ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास, किसी के पास कैपेसिटी नहीं होती कि पानी को वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे पानी को, हो ही नहीं, मुमकिनात पे से नहीं है। इतनी बड़ी वाटर बॉडी वहाँ पर मौजूद है, धूप ऊपर से पड़ रही है, गर्मी है, उससे भी आपको नहीं लगता हीट इंडेक्स बढ़ने से भी कई बीमारियाँ फैलती हैं? बिल्कुल, उससे होता क्या कि वैसे ही ग़िज़ा की कमी है, साफ पानी की कमी है, फिर जब ये ट्रांस एवापोरेशन होता है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। मैं अपना आपको तजुर्बा बताऊं, मैं यूजुअली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, लेकिन इन विजिट्स के दरमियान मुझे एक दिन में कई मरतबा अगर मैं पानी ना पीऊं, खुद ना पीऊं, वी कैन नॉट इवन स्टैंड एट दोस प्लेसेस। इतनी ज्यादा हवा में नमी हो चुकी है और ड्रेन हो रहे हैं लोग, तो उससे नमकियात की कमी, उससे कमजोरी, छोटे बच्चे, बुजुर्ग। अच्छा, वो लोग आप सोचिए, ये तो हम बात कर रहे हैं एक्यूट इश्यूज की, जो लोग एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ थे, इनको पहले से दिल के अमराज हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनकी भी रसाई खत्म हो चुकी है कि वो कैसे हेल्थ फैसिलिटीज तक जाएंगे। तो जो जरूरत थी कि राशन पहुंचाएं, वो ग़िज़ाएं पहुंचाएं, उनको मच्छरों से बचाएं और ऑन साइट कैंपिंग करें। मैं चाहूंगी, देखिए अभी पिछले हमने देखा है कि जो दुरुस्त चीजों का इंतखाब नहीं किया गया, जो पंखे से पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है पंखे पहुंचाएं, लेकिन जब बिजली नहीं होगी तो पंखे वो कहाँ चलाएंगे? तो अभी जो फौरी तौर पर जिनकी जरूरत है, क्योंकि देखिए वहां पे हम देख रहे हैं कि मेडिकली लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो खुराक के साथ साथ कौन कौन सी चीजें डॉक्टर साहब प्लीज आप हम चाहेंगे हमें बयान करें। खुराक हो गई, मच्छरों से बचाने की बात हो गई, आपने कहा कि आटा चावल जरूर दें, लेकिन बिस्किट्स दें, केक रस दें, उनको इस तरह की चीजें फौरी तौर पर, खजूर दे दें, वो खाई जा सकती है, चने दीजिए, और बच्चे भी वहाँ पे जो बच्चे उनके लिए बिस्किट्स लेके जाते हैं लाजमी, खुश्क दूध दीजिए उनको, ये सब चीजें देने की जरूरत है। मच्छरदानियों की जितनी ज्यादा जरूरत है, जो डिस्लोकेट होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने अपनी जगह छोड़नी नहीं है, वहाँ के अपने इश्यूज हैं, आपको पता है, पर्दे भी हैं, लोग नहीं चाहते कैंपों में आके रहें। बिल्कुल, तो बहरहाल जो आ सकते हैं उनके लिए टेंट्स हमें चाहिए, जिस तरह के भी हम दे सकें। बारिश अल्लाह का शुक्र अब हो भी नहीं रही और आगे इम्कान भी थोड़ा कम है, तो वो तो मामला हल हो गया। पानी की निकासी का काम किया जाए। फिर दवाओं की जरूरत है, दवाओं की जरूरत बेहतर है कि अंडर कंसल्टेशन हो जाए। बेतहाशा लोग देखें, मैं आपको तारीफ भी करूंगा इस मौके पे कि वो वॉलंटियर कर रहे हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स हमारे साथ जा रहे हैं, वो ऑन साइट कैंपिंग कर रहे हैं। तो जरा से एक डॉक्टर भी एक आंख से देख ले मरीज को और दवा दे। हमें जिन दवाओं की जरूरत है जो दी जा सकती हैं मास लेवल, वो एंटी मलेरियर्स हैं। इसमें डेंगू का तो कोई इलाज नहीं, उससे तो बचने की कोशिश, वो तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है उसकी, जो हो जाए उसको लेके जाया जाए हेल्थ फैसिलिटी की तरफ। एंटी मलेरियल्स पहुंचाई जा सकती हैं, सिंपल पैनाडॉल, ये दवाएं लेकर हम पहुंच सकते हैं मास लेवल पे, ताकि लोगों के अच्छा सर, एक चीज मुझे ये बताइए कि आप देखें बेसिक बीमारियां, जिस तरह से आपने कहा वाटर बोर्न डिजीज है, लोगों के पास अगर पीने का साफ पानी नहीं होगा तो ये कह देना कि पानी पहुंचा कैसे। एक तो सर मैं भी ये तस्करा कर रहा था और हमने इंटरनेशनली देखा भी है कि ऐसे कोई जब इशू होता है या ऐसे सैलाब वगैरह, तो उसके बाद वो स्ट्रॉस जो आती हैं कि पानी से वो मतलब क्लेम तो करते हैं कि 90% या इस तरीके से वो एक्युलाई और बैक्टीरिया का खात्मा कर देते हैं, तो वो यूज की जा सकती हैं, या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाना मुमकिन नहीं होगा, क्या करें? इंडिविजुअल लेवल से लेकर और एक गवर्नमेंट लेवल तक ये मामला जा सकता है। लोग इंडिविजुअली बहुत सारे मशवरे दे रहे हैं कि ये इस्तेमाल कर लें। मैं ये तो नहीं कह सकते कौन सा मेथड प्रूवन है कि नहीं है, उसमें सबसे अच्छे अगर आग जलाने का मौका मौजूद है, उबाल लें पानी, ये तो सबसे अच्छा आसान है। उनके पास आमतौर पे कपड़ा होता है, दुपट्टे से छान लें उसको, ये सिंपल मेथड है, ये सब कर सकते हैं कि छान लेना और उबाल लेना। बाकी ये प्लांट्स हैं, लोगों ने किया भी है, लेकिन ये तो जरूरत है ना कि देखें ये मास मोबिलाइजेशन, स्टोव वगैरह या इस तरह की चीजें मौजूद है, लकड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं फिलहाल, और एक्यूटली उनको मना भी नहीं करना चाहिए। क्या करें, अभी तो हम उस फेज में, एक्यूट फेज में, कि किसी तरह वो सस्टेन करें कि पानी निकल जाए। डॉक्टर साहब मैं तो ये सोच रही हूँ, देखें अभी सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर शुरू होने वाला है, और उसके बाद हमने अभी से शाम में कराची में भी हम देख रहे हैं कि जो ठंडी होने लग गई है। अब वहां पे मैं देख रही हूँ कि जहां पर ऑलरेडी इतनी बारिश हुई हुई है, जहाँ की जमीन इतना पानी ऑलरेडी सोख कर चुकी हुई है, वहाँ का टेम्परेचर कितना फर्क होगा और आने वाली सर्दियों में वो कितने मसले मसाइल होंगे। मैं तो ये सोची हूँ कि इसको देख के हमें क्या करना चाहिए। अच्छा देखिए, इसके लिए सबसे पहले कि अब जो कुछ जिस सतह पे मशीनरी खास तौर पे इस पानी की निकासी नेचुरली तो हो ही रही है, इट विल टेक टाइम, तो जो भी इस्तेमाल किया जाता है कि निकासी को, उसको अब तेज करें, एक्सपीडाइट करें इस मामले को। हमने काफ़ी इमदाद भी हमारे पास आ चुकी है, अब मोबिलाइज हों। एक बात जाकर हमारे डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, सबको करना, आपका मीडिया ये काम कर रहा है कि लोगों में अवेयरनेस पहुंच जाए कि जी किस तरह आपने अपनी हाइजीन का ख्याल करना है। कम से कम इतना कर लें, मैं अगर फेफड़ों की बीमारी के हिसाब से आपको बताऊं कि कम से कम
थूकते हुए, आपको पता हमारी हाइजीनिक जो प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं, खांसते हुए हाथ धोने का एहतमाम कर लें, उस पर एहतियात कर लें। और वेरी इजी टू से, लेकिन ये कि अगर अल्लाह चाहे और हम कोशिश करें नवंबर से पहले अगर हमने कुछ इक़दाम उठा लिए तो शायद फिर हम फेफड़ों की बीमारियों ध्यान में रखिए, सिर्फ आम निमोनिया नहीं फैलेगा। जब आप इतने क्राउडेड जगह पर होते हैं, कैंप्स में होते हैं, माल नरिश्ड होते हैं, तो टीबी पहले ही रैम्पेंट है हमारे यहाँ। जो टीबी के केसेस हैं वो भी बेतहाशा बढ़ेंगे और जाने किसका इलाज हो पाए, किसका इलाज वो तो है ही सारे, वो सारी बीमारियां पेट की, जिगर की, जल्द की, मलेरिया, डेंगू। अच्छा, अभी आप वहां पर थे तो एक तो जिस तरह से पानी से मुतालिक, अब 12 फीट पानी, दैट्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, वो इमेजिन ही हम कर सकते हैं। तो उसके निकासी के लिए आपने देखा कि कोई, और निकासी करके ले जाएंगे कहाँ? नहीं, वो मैं बताऊं अशफाक साहब आपको कि वो हुआ ये कि पानी कोई एक रॉ में बहता हुआ पानी नहीं है, ये पॉकेट्स हैं, स्कैटर्ड पॉकेट्स। यानी कि जो मैंने देखा है दादू से आगे मैं आपको बताऊं आंखों देखा हाल, तो दरिया सिंध का जो बैंक टू बैंक एरिया है वो बहुत कम है, और जो पानी सैलाब का है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकते हम, इतना पानी है वहां पर कि दरिया सिंध छोटा है, उसके सामने जो पानी जमा हुआ है। कहा गया था ना ऊपर से एक एरियल व्यू कि 100 किलोमीटर पे एक झील बन गई है, इससे अंदाजा कर 100 किलोमीटर ही सब 100 किलोमीटर मतलब बहुत बड़ा रस्ता है। और जब हम देखते हैं जाके तो लगता है अंदाजा नहीं हो पाता कि हम रियली वी आर बिसाइड अ रिवर और बिसाइड अ सी और वेयर वी आर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके जिनको आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जाने, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का एक्सेस जो है वो मुमकिन ना हो, क्योंकि बहुत सारे भी ऐसे इलाके हैं, हमने देखा है स्पेसिफिकली बहुत सारे इलाकों तक कोई पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल, मैं आपको विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ सेल्फ प्रेज हियर, हमने भी बहुत छोटे लेवल बता रहे, कोई भी इतना बड़ा ये डेवस्टेशन है जैसे सती कह रहे थे, और हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि फिर भी ये कम है। तो हम तो जिन इलाकों में गए वहाँ भी हमने यही सुना है, दूसरे दोस्त भी जिन इलाकों में लोग जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हम तक कोई नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन जरूर पहुँच भी रहे हैं लोग जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल बहुत बड़ी है, इसका कैनवस बहुत बड़ा है, सबको इनकॉर्पोरेट इंटेग्रेटेड अप्रोच से जाना होगा, वरना ऑल्सो यहाँ पे एनजीओस को भी कश्तियों की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको जरा एरियल व्यू दिखाती हूँ उन इलाकों का जहाँ पर सैलाब आया है। ये आप एरियल व्यू देख सकते हैं, ये इस सैलाब से पहले ये गांव थे, ये देहात थे, यहाँ पे लोग रहते थे, लोगों के घर थे, यहाँ पर लोगों के स्कूल थे, यहाँ पे दुकानें थी, पूरे 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 शहर आबाद थे, लेकिन अब ये बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। जस्ट इमेजिन। और हम इसमें कई फैक्टर्स की बात करते हैं, और इसमें से एक फैक्टर ये था कि शायद हमारे दरियाओं पे हमारे पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं, हमारे पास डैम्स होते हैं, तो ये पानी की बेहतर नेविगेशन हो सकती थी। आप सोचिए कि अगर भाषा डैम होता तो 8 मिलियन एकड़ फीट, काला बाग होता तो 6 मिलियन एकड़ फीट पानी हम स्टोर कर सकते थे, और पानी को नेविगेट करके बेहतर तरीके से इन इलाकों को डूबने से बचा सकते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और अब अशराफिया तो नहीं भुगत रही, गरीब लोग बेचारे भुगत रहे हैं, और अब भी पानी का निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। तो सर मुख्तसर हम चाहेंगे कि आप क्या मैसेज देंगे वो लोग जो कि आपको इस वक्त देख रहे हैं? मैं मैसेज दूंगा कि जी दुआ भी कीजिए, और अमल का वक्त है, इस वक्त अमल में आगे बढ़ें। आप खुद कर सकते हैं तो करें, वरना जो भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कर पा रहे हैं दोनों प्रॉन्ग्स में, वो फूड रिलीफ हो, शेल्टर हो, वो मेडिसिन के एस्पेक्ट से हो, उनकी मदद करें, अपने एतमाद के लोगों में जाए, अपने सर्कल में जाए, लेकिन ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये उनका भी इम्तिहान है जो मुसीबत में घिरे हुए हैं, और उससे बड़ा इम्तिहान उनका है जो आफियत में है कि आगे बढ़ें, पीछे ना बैठे रहें। ये लूज करने का नहीं है बल्कि जीतने का वक्त है, आगे बढ़ के उनकी मदद करें। और बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वहाँ से निकालें, क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ जो ट्रेजेडीज देख ली हैं, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को बहते हुए, अपने प्यारों को बहते हुए, और हम खुद सोचें थोड़ी देर के लिए कि घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग जो है वो बीमार हो और उस दिन बहुत तेज बारिश हो कि आप अपने उस घर के बुजुर्ग को सिर्फ अस्पताल ना लेके जा सके, तो वो आप कर्ब और अजियत कुछ लहजे के लिए सोचें अगर आप पर आए। और यहाँ पे तो वो सिचुएशन थी कि जब सैलाब का पानी घरों में आ रहा था, घर में बुजुर्ग थे, बीमार थे, आप उनको नहीं बचा सके, तो इनकी ट्रॉमा हीलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनको इस ट्रॉमा से निकालने में भी मुझे लगता है कि बहुत वक्त दरकार होगा, बहुत वक्त। पहले तो जिंदगी बचा लें। यहाँ पर मेंटल हेल्थ के हवाले से सोचता कौन है? जिंदगी बच गई तो फिर वो खुद ही हीलिंग भी हो जाएगी। वैसे कौन सा उनकी जिंदगी में पहले आसानियां थी, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहने दें उनको। अब तो जिंदा रहने का हक भी उनसे एक तरह से छिन गया है, और अगर कसूर देखा जाए तो वो पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं हुक्मरानों का जाके निकलेगा, जिन्होंने कुछ किया नहीं लोगों के लिए। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह आपको मजीद तौफीक अता फरमाए, और जो लोग देख रहे हो वो भी काफी कुछ इससे सीखें। चले जी, खबर है हमारे पास लाहौर से, और वो